Good morning students. How are you all? Today we are going to solve worksheet number 6, chapter number 9, solve. This worksheet is framed from your notebooks, textbooks and your sessions. Choose the correct option. Which component is responsible for the fertility of soil? Soil की fertility के लिए कौन से components responsible है? Minerals, humus, size of soil particle, bedrock. So, humus is responsible for the fertility of soil. Which type of soil is useful to prepare matkas? मटकास बनाने के लिए हमें कौन सी soil चाहिए? Clayey soil, loamy soil, sandy soil, mineral rich soil. So, clayey soil is useful for making matkas. Which of the soil particles are in smallest size? Sand, clay, silt or gravel. So silt is a particle which is smallest in size. Which type of soil is suitable for crops like wheat and grams? Oily, only sandy, only loamy, sandy and loamy, clayey and loamy. So, clayey and loamy soil is suitable for crops like wheat and grams. One soil sample took 50 minutes for 250 ml of water to percolate. What is the rate of percolation? अब rate of percolation की formula क्या है? Amount of water upon time taken. So, 250 upon 50. So, our answer is 5 ml per minute. State true or false. Earthworm can be seen to come out from soil in monsoon. True, क्योंकि monsoon season में उनके जो holes होते हैं जहाँ पे earthworms रहते हैं वो उसके अंदर पानी भर जाता है. So earthworm starts coming outside. Mars is seen in sandy soil. False. Mars जो है वो कौन सी soil में दिखता है? वो हमें loamy soil या clayey soil में दिखता है जहाँ percolation rate पानी का बहुत कम होता है. Loamy soil is a mixture of sand, clay and silt particles. True. Sandy soil is the best for the crop of wheat. False. Wheat के लिए हमें कौन सी soil चाहिए? Loamy and sandy mix. Define the following. Soil erosion. The removal of land surface by water, wind or ice is known as soil erosion. Soil erosion क्या होता है? जो लैंड के सरफेस लेयर होता है वो पानी से वॉश हो जाता है विंड से या तो फिर आइस से, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं. द सॉइल व्हाट इज लोमी सॉइल? द सॉइल विच कंटेन्स अबाउट सम प्रपोर्शन ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज कॉल्ड लोमी सॉइल. लोमी सॉइल के अंदर छोटे और बड़े दोनों पार्टिकल्स मिक्स होते हैं. मैच द फॉलोइंग. सैंडी सॉइल, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज मैक्सिमम. सैंडी सॉइल में पानी ज़्यादा सोख हो सकता है. क्लेई सॉइल वाटर रिटेन एफिशिएंसी इज मैक्सिमम, यानी वो ज़्यादा पानी अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. लोमी सॉइल, इट इज़ बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल प्रोफाइल, डिफरेंट हॉरिजन ऑफ सॉइल, दैट इज ऑप्शन बी. सो फॉर नंबर 1 ऑप्शन सी, नंबर 2 option D, number 3 option A, number 4 option B. Answer the following in one sentence. What is weathering? Weathering is a process in which soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. Weathering क्या होता है? Weathering ऐसा प्रोसेस है जो सॉइल को ब्रेक कर सकता है, बड़े बड़े रॉक्स को ब्रेक करके छोटे पार्टिकल्स बनाता है. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर विंड, वाटर और क्लाइमेट का एक्शन होता है. दैट इज कॉल्ड एज वेदरिंग. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. यानी सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है उससे हमें डिफरेंट लेयर्स पता चलते हैं. Which factors play significant role in the process of breaking down of rocks? Wind, water and climate are the factors which
प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। रॉक्स को कौन ब्रेक डाउन करता है? विंड, वाटर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए, राइट? मेंशन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल composition. The components of soil compositions are gravel, sand, clay and humus. Mention the 3 types of soil: sandy soil, clayey soil and loamy soil. Mention the importance of soil. The importance of soil is as follows. It supports the growth of plants by holding the roots firmly. यानी soil का importance क्या है? वो plants को firmly hold करके रखता है. It provides water and nutrients to the plant. Soil जो है वो plants को water भी provide करता है और nutrients भी absorb करने में help करता है. Soil is home for many organisms. Soil के अंदर बहुत सारे organisms छोटे बड़े सब रहते हैं. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing and shelter. अब सॉइल जो है उससे एग्रीकल्चर होता है और एग्रीकल्चर हमें फूड देता है, क्लोथिंग यानी जैसे कि कॉटन क्लॉथ, ज्यूट मटेरियल वो भी हमें देता है, और शेल्टर यानी उसके वुड से जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं उसके वुड से हमें हाउस बनाने में भी मदद रहती है. द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम. एक्सप्लेन. यानी प्लांट्स ग्रो करने के लिए लोमी सॉइल इंपॉर्टेंट है. वाई? लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स. यानी उसके अंदर छोटे से लेके छोटे और फाइन पार्टिकल्स दोनों मौजूद होते हैं. द सैंडी एंड क्लेई पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट द सेम. सो एयर एंड वाटर कंटेंट इज सिग्निफिकेंट इन इट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. यानी क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए ये एयर और वाटर उसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? It has moderate percolation rate of water as well as water retaining efficiency. यानी उसमें 2 क्वालिटी होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है और पानी को मेंटेन भी रखता है, यानी सॉइल को मॉइस्ट भी रखता है. सो द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट. लोमी सॉइल में ह्यूमस भी ज़्यादा होता है. सो द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्लांट्स इज लोम. नंबर 8. List the difference between clayey soil and sandy soil. Clayey soil, the proportion of fine particles is relatively higher in it. यानी clayey soil में fine particles ज़्यादा होते हैं और sandy soil में large particles ज़्यादा होते हैं. Clayey particles pack tightly together, leaving little space for air in clayey soil. Clayey soil में क्या होता है? particles जो होते हैं वो बहुत नज़दीक यानी tightly pack होते हैं. उससे क्या होता है? एयर पॉकेट्स बहुत कम होते हैं, यानी एयर जाने की स्पेस बहुत छोटी होती है. सैंड पार्टिकल्स डू नॉट फिट क्लोजली टुगेदर. यानी सैंडी सॉइल जो होती है उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. एंड देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम. यानी उनके बीच में ज़्यादा गैप होते हैं, इसके लिए एयर इजीली अंदर एंटर कर सकती है. इट इज़ सूटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट एंड पैडी. क्ले सॉइल जो है वीट और पैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप्स सैंडी लोम सॉइल इज सूटेबल. कॉटन क्रॉप्स के लिए सैंडी और लोमी सॉइल सूटेबल है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर. अब आपको इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है और उसे लेबल करना है. एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, तो आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और उसे लेबलिंग अच्छे से करना है और कलर भी आपको करना है. सो लेट्स सी द डायग्राम. हियर यू कैन सी इज O, दैट इज ह्यूमस ऑन ऑर्गेनिक. यानी जो ग्रीन कलर के बीच का पार्ट है दैट इज ह्यूमस ऑन ऑर्गेनिक. A इज टॉप सॉइल, B इज सब सॉइल, C इज पेरेंट मटीरियल और R इज बेड रॉक. यानी उसके 3 मेन लेयर है, टॉप सॉइल, सब सॉइल और पेरेंट मटेरियल. और जो ऊपर और नीचे का जो लेयर है O इज ह्यूमस और ऑर्गेनिक, यानी उसके अंदर ह्यूमस और ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है. और बेडरॉक जो होता है वो बहुत टाइटली पैक होता है, बहुत स्टिफ होता है और उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. सो दिस डायग्राम चिल्ड्रन यू विल प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, राइट?
With this we complete our worksheet. So after watching the video, children, you will copy the question and answers you will write without seeing. Thank you and have a nice day, children.